Should a creative person be rooted to his culture, to the place where he comes from? Or is it fine in the pursuit of creativity that they forget who they are and where they come from? This is the perplexing question that a lot of people who get into the creative field have to deal with day in and out. I'm Vineet. This is the Indic Explorer channel. Welcome to a brand new edition, a special edition of the Indic Paradigm. As you can see, it's a great studio here, and all thanks to the guest of today's show. Welcome to the show, Vishal. Thank you. Thank you How are for you? doing this. You're welcome, first of all, to my place in my small little studio, which I always thought that we will have something like this. So yes, I mean, first of all, big congratulations to you. आपके effort के लिए, especially for covering cultural side of the Indic Renaissance or the entire Indic movement which is going on. Yes, and I'm really happy to be your guest at my place. Yeah, I'm actually wondering who is the guest and who is the host, right? Yeah, My show, but it feels like I'm the guest. But I want to ask you, this place really looks cool, and firstly, a great shout out to the three members of your team. You know Yes. who you are. They've really put in a good effort. But yeah, this is the part that I found the most interesting and unique. So this person here is sitting on this book, The Cultural Heritage of India, and that is watering the world. And somebody there seems to be carrying the weight of the whole world. The guy on the right is actually the guy who's left, because he's trying to change the world. They think that they can change such a such a big planet. They can change, but this is their wistful thinking, or their the utopic world where they live, that they can change the world. While the guy on the left is the guy they call as right, is trying to water the world, trying to nurture the world, give it more beauty, more green, more flowers, more nectar, and this all is coming from the cultural heritage of India. This is this very symbolic. I don't know what exactly it is, but yeah, this is when you look at it, you probably know what it is. So yeah, it's a beautiful setting these guys have done. Absolutely. I mean, I think the people in the Indic wing will be salivating at the prospect of seeing all these books layered one after the तो other. क्या होता है ना, थोड़ा काम करते करते थोड़ा फन भी कर लेना चाहिए. So all these books, these are my favorite books. Not India, Bharat and Pakistan. I still need to read it. Still आप देखेंगे packed है. साई दीपक की इंडिया देयर इज भारत मैंने पढ़ना शुरू कर दिए. कल्चरल हेरिटेज एंड ब्रेकिंग इंडिया इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बुक्स. And these are the books which I recommend people in this year, in 2022. I ask people कि ये किताबें पढ़नी चाहिए. इसके अलावा बहुत सारा सीताराम गोयल जी की काफ़ी लंबी एक सीरीज़ है. बहुत सारी किताबें हैं जिनके बारे में हम कभी शायद प्रॉब्ली इसमें कॉन्वर्सेशन करेंगे. But this is what I recommend generally. One thing I noticed, and since you mentioned Sai Deepak, he was an engineer who then became a lawyer. Yeah. And you were a doctor, and you are a filmmaker. I mean, talk about breaking stereotypes. It's at another level. So how did this happen? How did you make this choice of filmmaking? And doctory kabhi kaam aayi filmmaking mein? सो एक बहुत ही कॉमन सी स्टोरी है. जैसा कि आई वॉज इंटरेस्टेड, वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग मेडिसिन, बट एट वन पॉइंट आई लॉस्ट लाइक अ सीरियस इंटरेस्ट इन इट. बट द सेम ईयर आई गॉट सेलेक्टेड. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग, आई वॉज नॉट, मतलब मैं नहीं क्रैक कर पा रहा था. बट जिस साल मैंने क्रैक किया उस साल मेरा इंटरेस्ट कम हो गया. बट बाय द टाइम मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में बहुत सीरियस इंटरेस्ट हो गया. प्ले राइटिंग पोइट्रीज सब में इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा आ गया. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई सीरियसली स्टार्टेड थिंकिंग चूजिंग म्यूज़िक एज माई करियर. कहीं ना कहीं वो एक मेडिसिन के समय ही ना बहुत ज़्यादा मेरा रुझान पहले से था ही और ज़्यादा हो गया. सो कंपोजिंग सॉन्ग्स, राइटिंग स्टफ, राइटिंग स्किट्स, राइटिंग, ये सब तो
करते 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 by the end of my medicine I again got interested into medicine a lot. So I went, did my first 1 साल मैंने internship करने के बाद में मैं went to Nainital, worked as a medical officer. I came to Mumbai, I worked here in hospitals, I opened my clinic and did everything because I've suddenly got so much interest in medicine. The experience of किसी patient के आप दवा करने पे उसका ठीक हो जाने का जो experience होता है वो you can't explain in words. कि आपको सडनली फील होता है कि हाँ मेरे अंदर वो स्किल है, वो स्किल सेट है कि मैं किसी की तकलीफ समझ के उसका इलाज कर सकता हूँ. तो वो करते करते फिर एक समय आया ऐसा कि मुझे लगा कि फिर अब मैं मुंबई आया तो था इसीलिए फिल्म मेकिंग और म्यूज़िक करने के लिए, लेकिन वो दोनों ही काम मुझे लग रहा था ढंग से नहीं हो पा रहा था. लोग मुझे मेरे डॉक्टर होने की वजह से मुझे उतना सीरियसली लेते नहीं थे. उनको लगता था कि ये डॉक्टर अच्छा है, अच्छे अच्छे लोग मेरे फ्रेंड्स थे, बट दे यूज्ड टू थिंक दैट इसका जो है ना ये he is a doctor and he's passionate about these things. So they never took me seriously कि ये जो है ना serious creative person हो सकता. So then one day I'll have to make this decision कि मुझे भी छोड़ के full time यही करना पड़ेगा. और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप फुल टाइम, बहुत से लोग आते हैं बाहर से, सोचते हैं कि हम ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं. यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से लेके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आते हैं और वो यहाँ से फेल होके जाते हैं. आई कैन give you like so many examples. Unless you take an insider, you keep investing in this industry, either time or money, you can't make it big here. Medicine helped me writing scripts which have like the scientific sides. You know that Bollywood में बहुत सारा crap when it comes to science, they convenience की stories लिख देते हैं, उनको convenient जो लगता है वो कर देते हैं. कहीं research करना है, सब करना नहीं होता था. आजकल थोड़ी serious फिल्म बनने लगी हैं, पर जब मैं आया था तब तक वो मतलब मजाक ही उड़ जाता था लिटरली. तो कहीं ना कहीं उसने बहुत मुझे हेल्प किया इस तौर पे, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि इट डिडंट हेल्प मी मच ग्रोइंग इन माय इंडस्ट्री. मेडिसिन डिडंट हेल्प. Do creative people need to be culturally rooted, and why? If your answer is yes, they do, then why exactly are they not in such large numbers? So मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है पिछले हज़ारों सालों का इतिहास है. मैं उसको 5000 साल 7, 10, 12, 15 में नहीं गिनूंगा. हज़ारों साल का अनंत समय जितना भी अभी हम खोदते जा रहे हैं उतना हमको पता चलता जा रहा है कि हिंदुस्तान कितना पुराना है. तब से लेके आज तक हमारी आर्ट जो है ना, आर्ट और कल्चर हमारे रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म के साथ में मर्ज्ड है. इट इज़ लाइक जितना स्पिरिचुअल है आदमी उतना हो सकता है आर्टिस्टिक हो, या इतना आर्टिस्टिक होगा तो उतना ही स्पिरिचुअल भी हो. देयर आर फ्यू मतलब चारवाक जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, कणाद हैं, चारवाक हैं, लेकिन इनके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ स्कल्पचर्स दे वर मेकिंग व्हाट, दे वर मेकिंग गॉड एंड गॉडेसेस. उनके मंदिरों की वो बना रहे थे. वो आपको अदरवाइज स्कल्पचर्स में और कुछ और भी मिलना चाहिए था, पर ज़्यादातर जो है ना आपको देवी देवताओं के चित्रण, देवी देवताओं के स्कल्पचर्स यही मिलते हैं. आप भजन सुने, आप ठुमरियाँ सुने, आप जो भी पुराना टेक्स्ट है, पुराना म्यूज़िक है, पुरानी जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब स्पिरिचुअल उसके अराउंड लिखे गए हैं. लेकिन समहाउ ये जो हमारा एक मिक्स कल्चर सडनली आया है, जो आर्ट के नाम पे जो रिवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसोशिएटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू डिसोशिएट देमसेल्फ from the roots of this country, then only they can get the validation from the people sitting on top. So who are sitting on the top? These are the people who call themselves liberal, but they are not. First of all, they are not liberals. They are typically those socialist leftist mindset के लोग होते हैं जो किन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आते हैं. वहाँ पे इन्हीं लोगों का कब्जा है. वो उन लोगों को फिल्टर करते हैं जो उनके साथ अलाइन करते हैं, और उन फिल्टर्ड लोगों के लिए उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है. जिस इकोसिस्टम में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में और हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है, इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, FTI वगैरह हैं, सब जगह पे, और उन लोगों का ही इकोसिस्टम होता है. उन लोगों को सपोर्ट किया जाता है, बाकी लोगों को काफ़ी ह्यूमिलेट भी किया जाता है या उनको साइड लाइन किया जाता है. उनको बहुत ही डेरोगेटरी और बहुत ही जो भी आप टर्मिनोलॉजी आप जानते हैं. सो एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन, बट a culturally rooted Hindu is not fine. ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आर्ट
और कल्चर का या रूटेड होने का दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं. अगर आप रूटेड हो तो आप फिर आर्टिस्ट नहीं हो सकते. तो उसका एक बड़ा रीज़न है कि एक वॉल खड़ी की गई है, गेट कीपिंग की गई है, और उस गेट कीपिंग की वजह से मेजॉरिटी फ़र्क आया. और आज ये हमारी इंडस्ट्री इस वक्त जिस गर्त में गई है, जो हमने रॉक बॉटम, लिटरली वी हिट दिस, इज़ प्राइमरीली बिकॉज ये गेट कीपिंग करके आपने टैलेंट को फिल्टर कर दिया. आपने सिर्फ आइडियोलॉजी को फिल्टर करके अंदर लिया, टैलेंट को आपने बाहर छोड़ दिया. तो अगर आपके साथ कोई अलाइन नहीं करता तो आप उनकी एंट्री नहीं है. सो यू नो द नेम्स, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द नेम्स एंड ऑल, बट सिंस देयर आर फ्यू great filmmakers who have changed the entire scenario. पूरा एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है. एंड ये जो है कहीं ना कहीं अब सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है. और मेरी जानकारी में अभी तक हमारी इंडस्ट्री अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई इस फैक्ट को कि ये शिफ्ट आ चुका है. बट स्टिल आई थिंक देयर आर फ्यू मोर मंथ्स, 6 months, 10 months, and then you'll see people fall, like the talent will be selected on the basis of the talent only, their skill set only, not on the basis of the ideology and how they think and how liberal and how illiberal they are. Yeah. So you mentioned कि गेट कीपिंग होता है. हाँ. वो मतलब ऐसा नहीं है कि कल्चरली रूटेड लोग क्रिएटिव नहीं है. इट्स जस्ट दैट उन्हें गेट के अंदर ही नहीं आने दिया था जी. तो अब मान लीजिए कोई अगर ऐसा है जो like because you are someone who is comparatively more established now in the industry, so if some youngster is coming into the film industry, maybe as a aspiring cinematographer, director, script writer, whatever it is, any part of the filmmaking process, and they are culturally rooted or they are Indic, right? What do you suggest the path they should adopt? क्या उन्हें चुप रहना चाहिए, इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, आ रहे हैं अपना काम करके, putting their head down, working hard, going back, because at the end of the day उनका क्राफ्ट वही है, right? या उन्हें अपनी बातें मतलब निष्पक्ष तरीके से they should express it, क्योंकि इसमें 2 व्यूज़ हो सकते हैं. एक ये है कि you have to earn your livelihood, तो पहले आप आओ अंदर, एंट्री तो ले लो, एस्टैब्लिश हो जाओ, और फिर आप अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है रखो. दूसरा ये है कि आप पहले दिन से ही फ्रैंक रहो. सो आप क्या सजेस्ट करते हैं? मेरा बहुत सिंपल मानना है इसको लेके कि देखो आर्ट क्या है. प्राइमरली समझने की बात है कि अगर हमको सिर्फ एक जॉब करना होता है, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, मुझे डेटा फीड करना है, या मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, या मुझे सॉफ्टवेयर पे काम करना है, या मुझे हार्डवेयर पे काम करना है. दैट्स माई जॉब. आई विल डू दैट. आई विल गो टू माई प्लेस, प्रॉब्ली डू whatever expression I have, whatever ideology I have, ideas I have, maybe I'll put it on social media, or I'll just talk to people who are around me. But creative world is all about expressing yourself. So if you are not able to express yourself, you will live a dual life, and you will be always, your thought process will be suppressed. You will always feel कमतर. जब तक आप अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तब तक वो आपकी आर्ट ही नहीं लोगों को देखेगी. तो 2 चीज़ें होती हैं. एक तो लोग एक्सप्रेस करने के नाम पे किसी और के आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं और उनको उससे वैलिडेशन मिलता है, तो वो वही करते रह जाते हैं. या ऐसे लोग भी हैं जिनका कोर टैलेंट था ही नहीं, पर वो ऐसे उन्होंने कीवर्ड्स उठाए, उन्होंने कुछ लेंस पकड़ी, उन लेंस में उन्होंने लिखा कुछ ऊट-पटांग, कुछ लोगों को जम गया, कुछ लोगों को नहीं जमा, और वो एक मीडियोकर टाइप के आर्टिस्ट बन के रह गए लाइफ में. तो मीडियोक्रिटी जो है ना, वो आई इसीलिए है क्योंकि हमने डूज और डोंट्स क्रिएट किए हैं. आर्ट का क्या मतलब होता है? आर्ट तो मतलब होता है कि आप जो भी आपके दिमाग में जो भी आता है, जैसे भी आप उसको अच्छी तरह से, पर आपका प्रेजेंटेशन द वे यू एक्सप्रेस इट, कि आप किसी को हर्ट करते बिना भी आप किसी को समझा दो. लेकिन पूरा गेम ही हो गया पिछले 10 साल की जो स्टैंड अप कॉमेडी है, जो एंटरटेनमेंट है, उसका मतलब ही हो गया कि आप इसको हिट करो, किसी को हिट करो, इसको हिट करो, उसको हिट करो, फिर फाइनली पता चला कि 5 लेने, इनको हिट करो, इसके अलावा किसी को हिट मत करना. वहीं वरना आप लिबरल नहीं कहलाओगे, है ना. आप ये लेंस हैं, आप इनको छू भी नहीं सकते. सो इस तरह से जो ना एक तरह की मोनोटनी आ गई पूरे कंटेंट पे. अब नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखो, बिल्कुल जिसको वोक कंटेंट बोलते हैं. यहाँ तक कि मतलब उनके सब्सक्राइबर्स ने उनको बोलना शुरू कर दिया, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि आप ये वो कंटेंट बंद करो. वाई? बिकॉज हम देख देख के बोर हो गए.
आप घुमा फिरा के वही बात, आप 4-5 लेन्स हैं, मैं फिर भी उन लेन्स के बारे में नहीं घुसूंगा। सडनली कंटारा आती है और लोग, पीपल गो बॉन्कर्स, दे उनको पता नहीं कर रही क्या ही कैसे बना दिया फिल्म। यही तो फिल्म है, ये तो हिंदुस्तान है। It shouldn't have been a surprise, right? सो एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इज द की। आप हाँ गलत एक्सप्रेस मत करो, गलत बात मत करो, झूठ मत बोलो, बिना किसी तथ्य के को परखे हुए, उसको रिलेट किए हुए आप जाके बकवास मत करो। ना सोशल मीडिया पे, जैसे बोलते हैं कही अनकही कही हुई बातें जो सही सुनी बोलते हैं, हियर से या व्हाट्सएप फॉरवर्ड, या जब तक आप खुद से, अगर आप कोई बड़ा स्टेटमेंट देना, गो रिसर्च एंड देन स्पीक अबाउट इट, एंड यू शुड नॉट बी अफ्रेड अबाउट इट। Even if chances go, it's fine. इट्स फाइन, somebody will like it। कोई तो होगा जो पसंद करेगा। मेरी जो छोटी सी गैंग है, मेरे छोटे से जो 4-5-6-8 लोग हैं जो मेरे साथ जेल करते हैं, दे नो मी बिकॉज ऑफ माई स्टैंड। नाउ दे आर स्टैंडिंग विद मी बिकॉज ऑफ माई स्टैंड। नहीं तो मेरे साथ ना तो वो खड़े होते ना ये खड़े होते। ऐसे भी स्थिति में लोग हैं, चलो वो एक अलग बात है। बट आई एम सेइंग, आपको पता होना चाहिए योर ट्राइब, व्हाट हु इज योर ट्राइब, दैट यू शुड नो। आपके हिसाब से आर्ट जो है, शुड इट्स, एक्सपेशली सिनेमा विच इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, उसका प्राइमरी पर्पस एंटरटेनमेंट, मनोरंजन होना चाहिए, या सोशियो कल्चरल, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे कमेंट्री करना भी एक पर्पस हो सकता है? व्हाट मतलब, इज आर्ट इन इटसेल्फ द ब्यूटी ऑफ आर्ट, या एक्टिविज्म के लिए भी आर्ट में स्पेस होना चाहिए? ये प्योर वैसी बात है कि कविता और मैथमेटिक्स वाली बात है कि आप जो कवि होता है वो बिल्कुल भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करता, और जो मैथमेटिशियन होता है उसको कविताएं सबसे बकवास चीज़ दुनिया की प्रॉब्ली नज़र आती होंगी। मतलब ऐसे भी कवि जानता हूँ मैं जो अच्छे मैथमेटिशियन हैं। बात वो नहीं, कहने का मतलब है कि एक चीज़ कंप्लीट कैलकुलेशन है, कंप्लीट आर्ट है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई सीमाएं नहीं, कुछ नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि एक्टिविज्म और एंटरटेनमेंट का शायद ऐसा ही कुछ रिलेशन है। हर कहानी में एक सार होता है, उसमें एक सीख होती है। रामायण क्यों दुनिया की सबसे पॉपुलर स्टोरी है? बिकॉज उसके अंदर लगभग सारे रस हैं, और स्टोरी मतलब वैसे तो हिस्ट्री है, बट मैं अगर उसको स्टोरी ही मान लेता हूँ अभी फ़िलहाल में, एक स्टोरी फॉर्म में देखूँ उसको, तो उसमें सारे रस भी हैं, और वो हमको अलग अलग समय पर अलग अलग सीखें देके जाती है वो कहानी। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, एक परफेक्ट हीरो की परिकल्पना जिसे बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम जिनको हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके आपका जो आर्ट है वो एक मैसेज तो देना ही चाहिए उसको। अब वो मैसेज देने को ही आप प्राइमरी अगर बना दोगे तो एंटरटेनमेंट उसमें चला जाएगा, मैथमेटिक्स, कंप्लीट मैथमेटिक्स आ जाएगी, जिसके अंदर अब जैसे कविताएं हैं जो मुक्तक होते हैं, जो फ्री पोइट्रीज होती हैं, जिनमें कोई ताल नहीं होती, राइमिंग नहीं होती, तो मीटर राइमिंग जो है वो मैथमेटिक्स ऑफ पोइट्री है। जब उस मैथमेटिक्स के साथ में आप उस पोइट्री को सुनते हो तो आपको एक अलग आनंद आता है, और आप उसको गुनगुनाना, उसके साथ में क्या बोलते हैं उसको, थाप चलाना, एक ताल में आप उसके साथ में हाथ चलाते हो, टैप करते हो, फुट टैपिंग जिसको बोलते हो। फुट टैपिंग इसलिए होता है क्योंकि एक मीटर में जाके सेट होती हैं चीज़ें। पोइट्री अच्छी, उसको बेहतर माना जाता है, पर जो फ्री पोइट्री होती है वो भी अच्छी होती है, पर उसको समझने वाली एक अलग ऑडियंस होती है। पर अगर आप एक कंटेंट मासेस के लिए बना रहे हो तो आपको हरदम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप सबसे पहले लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, बट देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेकर कि वो एंड ऑफ द डे क्या अपनी ऑडियंस को देने वाला, वो अगले जनरेशन को क्या दे रहे हैं। बहुत सारे उससे पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से प्रॉब्ली देखने के बाद, वो कंटेंट देखने के बाद हो सकता है किसी के मन में दुर्भावना आ जाए, हो सकता है कि कोई ऐसा काम कर बैठे जो उसको नहीं करना चाहिए। सो देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट, बट आई एम सेइंग प्राइमरीली एंटरटेनमेंट जिसके अंदर एक मैसेज हो और एक कैलकुलेटेड फॉर्म में हो, सो दैट उसको वो लोगों को समझ में आए, उसके अंदर एक रिदम हो। एडिटिंग भी, हमारी जो एडिटिंग होती है उसमें भी एक रिदम होता है, देखने पे हमको पता नहीं चलता, बट एडिट करने वाला एक रिदम में एडिट को कट करता है, उसके दिमाग में एक बीट चल रही होती है,
और तब वो फिल्म में जब शॉट पे शॉट चेंज होता है तो आपको लगता है कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो सबकॉन्शियसली आपको पता चल रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे कोई रिदम चल नहीं रहा है। मे बी सब टाइम बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, कुछ गानों पे आप देखते हो, गानों पे तो प्रॉपर्ली पता चलता है, जंप कट्स होते हैं, पर वो इनका एक मीटर होता है। तो एक ऐसे ही एक्टिविज्म और एंटरटेनमेंट में ये एक इसके अंदर एक उसको साधा जाना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसको ढंग से समझाओ, प्यार प्रेम और आदर के साथ समझाओ। ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों बातों में फ़र्क है। हो सकता है ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, वो हो सकता है कि सामने वाला समझने के लिए तैयार हो जाए। इतना सा डिफरेंस है। राइट। तो आप बात कर रहे थे रामायण के बारे में, एंड यू हैव रेड अ लॉट ऑफ इंडिक कल्चरल टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, तो जितना भी आपने रीडिंग किया है उसमें दिस इज अ वेरी लाइक दिस इज समथिंग दैट रियली इंटरेस्ट्स मी। आपके क्रिएटिव प्रोसेस में कभी उसका कोई इन्फ्लुएंस रहा है आपके वर्क में, बिकॉज यू रेड समथिंग you know, or if probably at a script level maybe some inspiration, or in your direction there's some idea that came in your mind because of the things you read, ऐसा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहीं रहा है? यश चोपड़ा जी जो है ना, वो हरदम यही बोलते थे कि उनके लिए जो परफेक्ट मेल प्रोटैगनिस्ट और परफेक्ट फीमेल प्रोटैगनिस्ट वो ऑलवेज लाइक राम एंड सीता, कि लोग जो है ना जिसको प्यार करना चाहते हैं विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर आप किसी को प्यार कर बैठो, तो वो उसके अंदर वो सारी खूबियाँ होनी चाहिए जो एक इंसान के अंदर हो सकती हैं। और वो परफेक्ट इमेज जो है ना, फिगर, वो भगवान राम ही थे, और वो परफेक्ट फिगर जो है ना, वो माता सीता ही थी। तो ये बात तो एक काफ़ी चर्चित बात है। मेरी जहाँ तक मेरी बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे जो इंस्पायर कैरेक्टर करता है वो हनुमान जी का है, और वो बहुत हद तक कई सारी मेरी लेखन में, मेरे कई सारे कैरेक्टर्स में वो आ जाता है। एक बहुत ही प्योर माइंड का, सर्व करने में बिलीव करने वाला, बलशाली, अपनी शक्ति का इस्तेमाल तब करने वाला जब उसकी ज़रूरत हो, वरना एक साधारण, जिसे बोलते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति बन के रहने वाला, अंडरडॉग रहने वाला व्यक्ति। तो ज़्यादातर अंडरडॉग्स की कहानी सबसे ज़्यादा, मतलब अगर हिस्ट्री में देखें तो हनुमान जी की कहानी अंडरडॉग की कहानी है, क्योंकि अंडरडॉग के जैसे रह रहे थे। आज अगर तुम रामायण को पूरा पढ़ के स्टार्ट टू एंड देखो, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल के हनुमान जी का ही आता है। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ तक कि दुनिया भर में भी हनुमान के लिए जो श्रद्धा है, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि सब लोगों को हनुमान चालीसा गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो किसी भी लैंग्वेज से आते हो, भले ही वो अदरवाइज हिंदी इम्पोजिशन और हिंदी के अगेंस्ट और ये सब होता है देश भर में, पर वो हनुमान चालीसा बड़े प्रेम से गाते हैं। ये आपने भी देखा होगा। Yes, और ये मैंने नोटिस किया, तो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हनुमान जी करते हैं। वैसे मुझे द वे ऑफ थिंकिंग, जिस तरह से सोचना चाहिए, वैसे में मुझे विवेकानंद ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। तो लेकिन मतलब ऑब्वियसली रामायण इज़ दी बुक फॉर मी which inspires me at different levels whenever I'm writing characters. Although I try and write entertaining films, and it doesn't matter whether where this idea is coming from, क्या कहाँ से हो रहा है, it should flow naturally. लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि आपका हीरो कैसा होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में शायद हरदम राम ही निकलेंगे कि राम जैसा होना चाहिए। ओके। अभी आजकल फिल्म इंडस्ट्री का एक ट्रेंड जो बहुत डिस्कस हुआ जा रहा है, एंड दिस इज इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया वाला जो कल्चर है, डिफरेंट है, नहीं है, सेम है कि नहीं है, इस पे एक डिबेट है। बट जो फिल्में निकल के आ रही हैं साउथ से, वो अब नॉर्थ में बहुत अच्छा करने लगी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर इज अ कल्चरल कॉन्वर्जेंस। तो ये फिल्में पहले ऐसा सोचा जाता था कि लैंग्वेज अलग है तो मूवी का रीमेक कर दो या डब कर दो, जो भी है,
एंड वो मूवी वहाँ पे एट मैक्स वैसे होगा, बट आजकल ऐसा है कि दैट ओरिजिनल मूवी इटसेल्फ मेनी अ टाइम्स इट्स बीइंग वॉच्ड विथ सबटाइटल्स या जैसे भी है। या साउथ की फिल्मों के साथ नॉर्थ में लोग रिलेट करते हैं, मूवीज पॉपुलर होती हैं, इनफैक्ट यहाँ बॉलीवुड सिनेमा से ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो इसके बारे में आपका क्या मतलब थिंकिंग है? आप तमिल संगम लिटरेचर में भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, आपको क्या लगा? मैं बड़े ही बहुत ही आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ बताता हूँ। ये शायद आपको तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप कहीं नॉर्थ में ट्रैवल करो। आपने नॉर्थ में ट्रैवल किया है? बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि जब भी आप नॉर्थ में जाएं, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अगर आप टैक्सीज़ में बसेस में ट्रैवल करें तो एक कमाल की चीज़ आपको कॉमन चीज़ मिलेगी इन सारी जगहों पे। सारे गाने जो चल रहे होते हैं वो कुमार शानू 90s के, उदित नारायण, करेक्ट राइट, उस समय के सोनू निगम के गाने, उदित नारायण के गाने। अगर आप घरों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 90s की फिल्में चलती हुई सेट मैक्स पे और इस पे दिखाई देंगी, या यहाँ तक कि सिंगल थिएटर में आज भी पुरानी फिल्में लगी होती हैं। सिंगल थिएटर्स में वो 90s की फिल्में लगी होती हैं। घरों में जाएंगे तो आपको वो चैनल्स पे, जिस पे मूवीज़ चैनल होते हैं, वो मूवीज़ चैनल्स पे आपको साउथ इंडिया की डब फिल्में दिखाई देंगी। ये आज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये मैं पिछले 10-12 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ज़्यादा ही समय हो गया रादर, कि वहाँ पर साउथ इंडियन फिल्म्स का एक्सेप्टेंस हिंदी में डब करके, उनकी लैंग्वेज में डब करके, पंजाब में पंजाबी में डब किया जाता होगा, गुजरात में गुजराती में डब किया जाता होगा, उनको वैसे के वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि देखने सुनने कल्चरली दे आर सेम। मैंने भी, जब मैं पहली बार साउथ में गया, मैं चेन्नई गया, मैं मदुरई गया और बहुत सारी जगहों पे गया, केरला गया, तो मुझे देख के ये पता चला कि अरे कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई। एक लुंगी को आप ऐसे पहनते हो तो धोती बोलते हो, लुंगी वही सेम लेंथ की लुंगी होती है। वो जो धोती पहनता है वो उसको यहाँ से गांठ बांध के इधर लगा लेता है, पर पहन तो वो भी वही रहा है, सेम धोती है, तो धोती है भाई। साड़ी है, वो साड़ी वो पहन रही है, साड़ी ही पहन रही है, बिंदी वो लगा रही, बिंदी लगा रही है। यहाँ मांग नहीं भरती है, मांग भरती है, यहाँ मांग नहीं भरती साउथ में। उसका एक छोटा रीज़न है, उतने अटैक्स नहीं हुए हमारे, उसकी एक अलग ही कहानी है, मांग भरने की अलग कहानी है। पर आप देखो तो सब कुछ सेम है, यहाँ तक कि खाने पीने में भी जो मसाले पड़ते हैं वो भी सेम है। हिंदुस्तानियों के बीच में सबसे बड़ा बैरियर ही लैंग्वेज है। मुझे पता नहीं कि वो बैरियर कैसे ख़त्म होगा, लेकिन ये जो बड़ा रिवोल्यूशन आया है कि साउथ की फिल्म्स, दक्षिण की फिल्म्स, आप हिंदी हार्टलैंड में इतनी चल रही हैं, क्योंकि जब आप हॉलीवुड को कॉपी कर रहे थे, जब आप कोरियन सिनेमा को कॉपी कर रहे थे, जब आप फिल्म कहानियाँ ऐसी बोलना चाह रहे थे जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में और ऑस्कर्स में जिनको वैलिडेशन मिले, आप उनके मानकों पे, फिल्म स्टैंडर्ड्स पे फिल्मों को, आप सिनेमा को चेंज कर रहे थे। उस वक्त साउथ का सिनेमा जो है वो नॉर्थ के घर घर में जा रहा था टेलीविजन के थ्रू। आपको जान के ताज्जुब होगा इस बात का कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, 100 करोड़ के आसपास लोग हिंदी समझते हैं, या तो बोलते हैं या तो समझते हैं, मिला के 100 करोड़ के आसपास लोग होंगे। 40 करोड़ नहीं समझते होंगे, मान लेता हूँ मैं। उन 100 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग फिल्म देखने चले जाते हैं थिएटर में, तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। सबसे बड़ी हिट जो फिल्म्स हैं उनमें टिकट सेल है 3.75 करोड़ और 4.1 करोड़। सबसे बड़ी हिट जो है, नंबर 1 और नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब है कि आपकी देश की 4% पॉपुलेशन सिर्फ सिनेमा देखने जाती है, तो वो ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो जब आप सोचिए, इतनी स्मॉल पॉपुलेशन जब फिल्म देखने जा रही थी आपकी, तब आपके फिल्म आपने, क्योंकि टिकट के प्राइसेस बढ़ा दिए आपको, जिसका रिजल्ट 1 आना चाहिए उसका रिजल्ट 4 आ रहा है, क्योंकि आपने टिकट के प्राइसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिए। तो भले ही लोग जाएं देखने, फिल्म तो हिट हो गई, क्योंकि पैसे आ गए। जिस समय ये हो रहा था, जब हम टिकट के प्राइसेस बढ़ा रहे थे और सिनेमा को चेंज कर रहे थे, उस समय लोग साउथ का कंटेंट देख रहे थे, और उनमें वो चिरंजीवी और थलाइवा और सारे हीरो वहाँ पे ग्रो कर रहे थे। आज जब हम उस सिनेमा को देखें, क्योंकि सिनेमा वो कॉन्स्टेंटली इंडियन सिनेमा बना रहे थे, आप कॉन्स्टेंटली ट्राइंग हार्ड फॉर हॉलीवुड, ट्राइंग हार्ड फॉर ऑस्कर्स, ये कर रहे थे, तो उस बीच में वो डिफरेंस गैप क्रिएट हो गया। अब हमें पता ही नहीं है इस स्टेज पे कि हमें सिनेमा बनाना कौन सा है।
हमको लगता है वो इट इज़ टू मतलब टू रिग्रेसिव ऑफ अ कंटेंट टू मेक। अरे ऐसा थोड़ी होता है हवा में, लोग इंटरटेन होने जाते हैं। प्राइमरली आपको देखना कि एंड ऑफ द स्टोरी आप कहानी में क्या बोल रहे हो, अच्छी बात बोल रहे हो, खराब बात बोल रहे हो। लोग तो एंटरटेनमेंट, क्या सुपरमैन होता है, क्या स्पाइडरमैन होता है, नहीं होता ना। क्या मार्वल की कॉमिक्स के जो इमेजिनरी सारे जो कैरेक्टर्स हैं या डीसी की जो इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं वो सच में होते हैं? नहीं होते, पर आपको मेक बिलीव कराते हैं, आप बिलीव करते हो, एंटरटेन होते हो, पैसे दे के आते हो। सेम चीज़ विद द स्टार्स इन साउथ है। वो सब कुछ थोड़ा ओवरटली, दो मैं अगर फिल्म बनाने जाऊंगा तो शायद मैं ऐसी फिल्म नहीं बनाऊंगा, पर मेरा मानना है कि वो कंप्लीटली ओके है, उससे लोग एंटरटेन होते हैं। मेरा सिनेमा हो सकता है वो ना हो, पर मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि नहीं यार ये बनना ही नहीं चाहिए, ये क्या बकवास है, मैं तो ऐसा नहीं बना सकता। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैं ऐसा नहीं बना सकता। मैं ऐसा नहीं बनाना चाहूंगा, लेकिन मुझे बनाने का मौका मिलेगा और शायद मुझे लगता है कि उस वक्त मौका दस्तूर होगा तो मैं करूंगा, और मैं हो सकता है अच्छा कोशिश करूंगा कि द बेस्ट आउटपुट दूं उसमें। ये एक बहुत बड़ी जो समस्या थी देश की, उसको उसका पहला स्टेप, उसका फर्स्ट स्टेप जो है ना वो लिया जा चुका है कि साउथ का कंटेंट नॉर्थ में वाइडली एक्सेप्टेड है। साउथ के स्टार्स को, प्रभास को हर आदमी जानता है देश के अंदर। तो इस तरह से धीमे धीमे आरआरआर में के दोनों हीरोज को अब देश में सब लोग जानते हैं। देखो एक फैमिली वैल्यू सिस्टम जो है ना वो साउथ ने मेंटेन रखी, और डायरेक्टली कभी फेस पे हिट नहीं किया। बॉलीवुड क्या करता है, वो डायरेक्टली इट ट्राइज टू हिट यू ऑन योर फेस। द सेम गाय हु इज बाइंग अ 400 रुपीज टिकट उसी को गाली देता है। दो भाई गाली, उसको समझाओ। तो धीमे धीमे लोगों ने निकलना, वो टेलीविजन में चली गई। जो हिंदुस्तान की तो जनता ने 90 के दशक में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मैं उन सिनेमाकारों का और एक्टर्स का नाम नहीं लूँगा, पर 90 के दशक में कुछ हुआ देश के अंदर, सिनेमा चेंज हुआ, और वो यहाँ से निकल के विदेशों में पहुँच गया। इंग्लैंड अमेरिका की लोकेशंस दिखने लगी आपको, जो हमारी जैसी नहीं थी। शुरू में अच्छी लगी कुछ फिल्म्स, लेटर ऑन लोगों को समझ में आना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि आप रिपीटेडली वही दिखा रहे हो, उनके जैसे खा रहे हैं। उनके एक फिल्म थी जिसमें वो गरीब लड़का था, वो पिज्ज़ा खाता था। हमारे यहाँ गरीब पिज्ज़ा या तो भीख में खाता है, ठीक है, या कहीं बट रहा हो तो खा लेता है। There is a Tamil movie called Kaka Muttai, which is Crow's egg, and that story is basically two kids in Chennai living in the slums, और उनका पूरा एम है लाइफ का कि एक बार पिज्ज़ा खाना है। मूवी के एंड में मतलब वो खाते हैं और उनका कुछ रिएक्शन, मतलब एंडिंग नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट इवेंचुअली दे गेट टू ईट एट द एंड ऑफ द मूवी। पूरा मूवी इस चीज़ पे बना है कि उन्हें पिज्ज़ा खाना है। तो और यहाँ पे गरीब है तो इसलिए पिज्ज़ा खाता है इस कॉलेज के अंदर। आई मीन एक बुलशिट के कुछ लेवल्स होते होंगे, वो अब कितना ज़्यादा। मैं सिंपल सी बात, मेरा एक मानना ये है कि हिंदी सिनेमा जो है वो मखौल उड़ाता है आम इंसान का। आम आदमी को ना तो वो सिनेमा समझ में आता है, और वो पूरे समय में आम लोगों के कल्चर का, उनके घरों की प्रथाओं का, उनके घरों में इक्वेशन का, हर चीज़ का मजाक उड़ाता है या उसको बहुत ही हीन भावना से देखता है। दिस इज़ दिस इज़ द विजन ऑफ हिंदी सिनेमा। नहीं बोलूँगा मैं इसको, बॉलीवुड का ही बोलूँगा। मुझे लगता है हिंदी सिनेमा का अभी भी आना बाकी है। बॉलीवुड में बहुत सारा ऐसा जो है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो हिंदी में ना तो बात करते हैं, ना ही वो हिंदी में स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, ना ही वो जब स्टेज पे जाते हैं तो हिंदी में कोई मतलब जो होता है ना कि आप वोट ऑफ थैंक्स होता है, आप जाते हो, हाँ अवार्ड मिला, तो वो अवार्ड के लिए हिंदी में बात नहीं करते। अब धीमे धीमे थोड़ा बहुत हिंदी में आना शुरू हुआ है। पहले तो हिंदी में टाइटल्स भी नहीं होते थे, आपको पता है। यहाँ पे CBSE ने ये एक नियम पारित किया है कि आप अगर टाइटल्स को हिंदी में भी नहीं लिखोगे, देवनागरी में नहीं लिखोगे, तो आपकी फिल्म सेंसर ही नहीं होगी। तब इन्होंने लिखना शुरू किया। इतने बेशरम और इतने क्या बोलेंगे, मैं सॉरी, मतलब मैं उसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बट बहुत ही अजीब वगैरह सिचुएशन है कि आप किसी भी भाषा में लिख के ले आओ। अरे भाई तमिल में तुमने यू आर फ्रॉम तमिलनाडु में क्या हिंदी में लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी? नहीं पढ़ी जाएगी। तमिलनाडु में तमिल लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी ना। इंग्लिश में थोड़ी लोग स्क्रिप्ट लिखते होंगे वहाँ पे तमिल में ही बात करते हैं, तमिल में ही स्क्रिप्ट लिखते हैं। मलयालम में भी यही होता होगा और यही तेलुगु में होता होगा। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशल केस है कि सबको अंग्रेजी में बोलना है। तो ये एक कॉलोनियल हैंगओवर है।
हम वो लोग, वो चुनिंदा लोग, कुछ लोग जो है जो अंग्रेज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस थे, अंग्रेज़ों को जैसे दिखना चाहते थे, अंग्रेज़ों की गुलामी करते 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 वो सिनेमा में घुस आए होंगे जुगाड़ उगाड़ करके। उन्होंने अंग्रेज़ी को इस इंडस्ट्री के अंदर मेंटेन रखा। देश से अंग्रेज चले गए और दूसरी भाषाओं से अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ी चली गई, हमने उसको प्रिजर्व करके रखा है। कॉलोनियल इंप्रेशन हमारी फिल्मों के ऊपर है। मतलब उनका स्किन कलर ब्राउन है लेकिन Brown अंदर है। से गोरे ही है। हाँ, ब्राउन गोरे हैं वो। एक 10-12 साल पहले लेकिन कुछ फिल्म्स थी जो यूपी बिहार बेस्ड थी, थोड़ा सा ट्रेंड निकला था, हाँ, बट वो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं रहा। लाइक तो वो यूपी बिहार से को दिखाना और यूपी बिहार को एक बहुत ही गंदी लाइट में दिखाना, जैसा है नहीं वैसा दिखाना। बिहार और यूपी में क्राइम था, क्राइम हो रहा होगा अभी भी, लेकिन अगर आपको सच में आपको अगर डेटा पे ही जाना है तो आज के समय में सबसे ज़्यादा क्राइम मान लो राजस्थान में हो रहा है, सबसे ज़्यादा रेप्स राजस्थान में हो रहा है। पिछले साल भर के रिकॉर्ड्स उठा के देखें आप। लेकिन अगर आपको रेप दिखाना है तो आप उस कहानी को यूपी में ले जाओगे। क्राइम दिखाना है तो ये लोग क्या करते हैं, अभी एक और मैं रिसेंटली एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक साइको किलर था जिसकी रियल स्टोरी पे हम कहानी बना रहे हैं। वो कहीं साउथ इंडिया में कहीं से था। इट डजंट मीन दैट क्राइम वहाँ ज़्यादा है, मैं ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उनको क्राइम बनाना है तो वो वहाँ से उन्होंने उसको स्टोरी उठाया और उसको यूपी में हिंदी हार्टलैंड में ले गए। जो जहाँ की कहानी थी वहाँ बोल देते, या नहीं था तो कम से कम एक जगह स्पेसिफिक नहीं करते। तो आपको उसको, तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। जबकि हिंदी सिनेमा का लगभग सारा आर्ट, कल्चर, पोइट्री सब आपका हिंदी हार्टलैंड से आता है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग सब कुछ वहीं से आता है। लेकिन आप वो तो नहीं दिखाते। आपने क्या देखा किसी फिल्म में कि दिखाया जाए कि एक बड़ा कल्चरली जो है ना एक इवॉल्व कवि किस्म का लड़का जो है ना बहुत ही अच्छा था, वो यूपी से था। अगर हिंदी बोल रहा होगा तो उसको सबसे ज़्यादा उसका मखौल उड़ाते, उसका मजाक उड़ाते, उसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। आप फिल्मों में देखिए कभी भी हिंदी शुद्ध हिंदी बोलता है उसको हरदम एक, या तो वो पंडित होता है, या तो वो अभी तो एक मैंने कोई सीरीज़ देखी थी उसमें तो वो द मास्टर माइंड क्रिमिनल मर्डरर यूज टू स्पीक शुद्ध हिंदी। और ये करा जाता है, कॉन्स्टेंटली किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको बेचना माल अपना उन्हीं को है, पर उनको ही गंदा दिखाना है। उनकी भाषा को जो है हरदम टारगेट करते रहना है, कल्चर को टारगेट करते रहना है। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो एक्टिविस्ट फिल्म मेकर हैं, एक्टिविज्म है, समाज को सुधार रहे हैं। तो ये जो दुनिया को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं, ये हमारी जो जो यहाँ की जनरेशन ठीक है, मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम थोड़ा वापस ले आके कुछ इसका भला कर दें प्रॉब्ली। तो जो भला करने वाली बात है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और आप इसमें एक कार्य कर रहे हैं जी, जो है इंडिक लाइब्रेरी, तो उसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताएं कि इसका पहले तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये आइडिया आपको आया कैसे और ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो आपने एक बहुत कॉमन टर्म सुना होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो कि हरदम अगर आप कभी भी देखेंगे जो प्राइमरली जो थोड़े से वामपंथी होते हैं या अपने आप को मॉडर्न लोग बोलने वाले होते हैं, उनको कोई भी आप इन्फॉर्मेशन दो तो आपको हो सकता है राइट अवे बिना उसको जांचे परखे आपको सीधे बोलने कि दिस इज़ अ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो दे हैव ऑलरेडी, उन्होंने जज कर लिया आपको। जैसे ही आप उनको एक इन्फॉर्मेशन देते हो जो कि इंडिक साइड की होती है, जिसमें कि आप ये बताते हो कि भाई आप कहीं ये कह दो कि नहीं, स्वतंत्रता जो है हमें गरम दल ने भी दिलाई थी। एज इन लाइक जो लोग जिन्होंने लड़ाई जो है ना बम कट्टों और बंदूकों से लड़ाई, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में हेड ऑन किया, क्रांतिकारी थे, उनको अगर आप आतंकवादी नहीं बोलोगे तो शायद उनको इस बात से ही तकलीफ हो जाएगी। अगर आप ये बोलने लगोगे कि भाई हमारी जो साइंस है, अगर आप किसी बोल के देखो ज़ीरो तो हमने दिया, तो कहेंगे ये भी तुमने दिया, तुम्हारा तो उड़न खटोला उड़ता था, अंतरिक्ष से तुम्हारा ये आता था। अरे भाई, आप ये 200 साल की जो औद्योगिक क्रांति और जो एक साइंटिफिक क्रांति हुई है, और सारा के सारा क्रेडिट उनको जाता है। जो हम देख रहे हैं आज, लाइट है, कैमरा है जिस पे हम शूट कर रहे हैं, ये माइक है जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं,
ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन क्या इसके पहले दुनिया नहीं चल रही थी? क्या इसके पहले इंसान 100 साल तक नहीं जी रहा था? लोग मर रहे थे ज़्यादा, और बीमारियां भी थी। मीजल्स, मम्स और स्मॉल पॉक्स और इस सब के बारे में बोला जाता है कि अंग्रेज़ों ने इन सारी बीमारियों को जगह जगह फैलाया भी था वहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। आपको अगर अमेरिका स्पेशली नॉर्थ साउथ अमेरिका में लोगों को मारने के लिए ब्लैंकेट में करके किया जाता था। ऐसा बहुत सारा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ भी किया। तो दुनिया तब भी चल रही थी, और शायद हम ज़्यादा बेहतर, इन्वायरमेंट ज़्यादा बेहतर था तब। ये जो आज समस्या हमारे ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल मतलब वर्ज ऑफ सिंकिंग है। पता नहीं कब हो जाएगा। कोविड आया, थोड़ा सा राहत हो गई फॉर सम टाइम। ऑन द अदर साइड आई एम सेइंग, नॉट फॉर द लाइक द कैथारसिस ऑफ ह्यूमन डेथ्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स, बट अदर साइड थोड़ा सा राहत हो गई। हमारा जो अपना एक आइडिया ऑफ लिविंग था, अगर आप उसके बारे में बात करने लगो कि हम कैसे बरगद की पूजा करते थे, क्योंकि शायद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उससे आती थी। हम पेड़ों की पूजा करते हैं। पेड़ों की पूजा करने का मतलब होता है आप यू गिविंग बैक, यू सेइंग थैंक्स। इट्स नॉट ऑलवेज कि हम सर झुका के और हमने सरेंडर कर दिया और यही देवता है, ऐसा। दिस इज हाउ वी आर प्रेजेंटेड। ये सब कॉलोनियल ट्रिक्स थी जो हमारे साथ में हमारे साथ अपनाई गई। और अब हमारी ही एक जनरेशन जो है ना, जो न्यू कॉलोनियल्स, हमारी जनरेशन, नए अंग्रेज हमारे बीच में रह रहे हैं, वो हमको उसी नज़रिए से देखते हैं। उनका नज़रिया वही है जो वो बना के गए हैं, आज तक उससे बाहर नहीं निकले। वो एक जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। तो हम अगर ये कहने लगे कि हम प्रकृति के पूजक हैं, हम सूर्य को मानते हैं, हमारा मानना ये है कि ये ऐसे होता है वैसा, तो सिद्धांत जितने भी हमारी अपनी साइंस जो है, जब भी आप उसके बारे में बात करेंगे तो उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोला जाता है, और आपको रिग्रेसिव बोल दिया जाएगा, मेडिवल सोच का बोल दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे टैक्स हमारे ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो इन सबों के बीच में मेरे दिमाग में एक दिन ये आइडिया आया कि वो भी क्लब हाउस के डेज में, जब क्लब हाउस सडनली एक एप्लीकेशन के तौर पे आया। बहुत से लोग मुझे लगे कि बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरेस्ट उनका रिसर्च में, एकेडमिक साइड में। इससे पहले मैं एक फेसबुक पे पेज भी चलाया करता था, उसका एडमिन था, जिस पे मैं बहुत बार ये फेस करता था, लोग कहते हैं इसका सोर्स क्या है। तो उस सोर्स को रिसर्च करने में 2-2.5 घंटे 3 घंटे निकल जाता था, फिर करके हम डालते थे। बट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पर वो मैं अकेला या मेरी टीम में 1-2 लोग थे, पीयूष भी उस टीम में था, हम लोग मिलके वो काम करते थे। और हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी अपने एंड पर बनाई थी, वेरी स्मॉल लाइब्रेरी, बट इट हैड लाइक सम 20-30 पेजेस, जिसमें हमारे काम की जो चीज़ें होती थी वो हम उसमें उसकी लिंक्स डाल देते थे, ताकि कोई मांगे अचानक से तो हम फटाक से उठा के उसको डीएम भी कर देते थे और उसको वहाँ पे भी डाल देते थे। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि राइट अवे उसकी जो रिपोर्टिंग है वो रुक जाती थी, या अननेसेसरी लोग जो आके वहाँ पे बदमाशी करते हैं। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू राइट आर्टिकल, व्हेन यू रिसर्च ऑन समथिंग, इट टेक्स months and months sometimes to get into a subject. तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए जिसमें कि हम डेटा कलेक्ट उन सारे फॉल्ट लाइंस पे, उन सारे प्लेसेस पे जो हमें लगता है कि ये, जिस पे आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल दिया जाएगा, उनके तथ्यों को ढूंढा जाए। जो जिनके तथ्य नहीं है उनको हम खुद डिस्कार्ड करें, हम खुद बोलें कि गलत है। एक शास्त्रार्थ करके, जो एक पुरानी पद्धति जो हमारी थी, उसको करके हम क्या कुछ चर्न आउट कर सकते हैं। तो वैसे हमने कोशिश की ऑन क्लब हाउस, और वो एक हद तक सक्सेसफुल रही। हमने 70-80 रूम, 80 रूम्स, मतलब होता है 2 घंटे का डिस्कशन। कई बार वो डिस्कशन 3-3, 4-4 घंटे भी हुए। कई बार रूम ख़त्म ही नहीं होता था, इतना सारा डिस्कशन होने लगता है। जैसे कि हमारा बंगाल वायलेंस पे, एज एन लाइक बांग्लादेश के बनने के ऊपर जो 1971 के में जितना ब्लड शेड हुआ, और जितना स्पेशली जिस तरह से हिंदूज टारगेट किए गए, तो वहाँ के कई सारे हिंदूज आ जाते थे, बांग्लादेश के हिंदूज आ जाते थे, और वो अपनी स्टोरीज बताते थे। वो पूरा रजाकर्स का पूरा द वे मर्सनरीज बनाई गई थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और कैसे अटैक करके, कैसे टारगेटेड अटैक्स किए गए, कैसे लाखों औरतों को, हिंदू औरतों को रेप किया गया, मुस्लिम औरतों को भी जो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही थी, इन सबको टारगेट करके कैसे वो रूम बड़ा लंबा चला, कई दिनों तक चला। ऐसे लाइक आज ख़त्म हुआ था, फिर दोबारा चालू हुआ। तो इस तरह से बहुत सारा इंटरेस्टिंग मटेरियल निकल के आने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि ये एक तरह की खदान है, एक तरह खजाना है जो मुझे मिल गया। एंड आई स्टार्टेड आस्किंग मोर एंड मोर पीपल, एकेडमिक पीपल एंड राइटर्स एंड ऑथर्स, कि आप आइए और रूम्स का पार्ट बनिए। फिर उनको हमने एक छोटी सी कम्युनिटी बनाने की कोशिश की।
Right now we are at the phase where we're trying to convert this into a website and probably a physical library, first physical library where you will see Indic point of view की 100 books in that library or 1000 books in the library. This is what we are trying to do right now. Okay. एक चीज़ है कि लोग एक तरह से स्टीरियोटाइप करते हैं कि if you're a creative person, then you do such and such things, right? And you in a way are kind of breaking that stereotype. You're a doctor who went into filmmaking. You get up in the morning, do a chant of Hanuman Chalisa with your guitar, and then you go play badminton, and then you come back and work on films. So इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं. It's a मिश्रण. शाम को इंडिक लाइब्रेरी भी. शाम को इंडिक लाइब्रेरी भी. So एक तो लुक जैसे कि हमारे बोलना चाह रहा हूँ कि क्या हम अपने आप को कभी-कभी लिमिट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स, या ये सच में ये स्टीरियोटाइप्स एक लिव्ड रियलिटी है और कुछ लोग उसको सिर्फ तोड़ पाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना, जब तक आप सब कुछ एज अ होल नहीं देखते हो, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा किसी के साथ में कोई मतभेद है तो मैं शायद उसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर समझने की कोशिश करूं और कि भाई ये जो बात बोल रहा है इसका क्या मायने हैं, और उसको समझते हुए अगर मैं एक होलसम आइडिया से मैं अगर दुनिया को देखने की कोशिश करूं तो मुझे शायद मुझे लगेगा कि उसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं. जैसे सोशलिज्म की कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्ली हो सकता है कि पुराने समय में हमारे यहाँ भी रही हूँ, लेकिन वो आज का आइडिया है तो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ. ओके, ठीक है कि मुझे लगता है कि सबके राइट्स होने चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए सबके, इसमें किसी को वीमेंस का जो है समान होना, रेस्पेक्ट होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, हमारे बराबर का उनको दर्जा दिया जाना चाहिए, हर चीज़ का राइट हर व्यक्ति का इक्वल होना चाहिए, सबको राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, सबको अपनी बात बोलने का अधिकार होना चाहिए, कोर्ट में केस करने का, FIR दर्ज कराने का से लेके अपनी बात को सोशल मीडिया पे बोलने का अधिकार सबको होना चाहिए. इसमें मुझे कोई किसी तरह का कोई समस्या नहीं है. पर आप बोलने के नाम पर आप सिर्फ टारगेटेड अटैक्स करो तो मुझे समस्या है. आप अगर सोशल चेंज के नाम पर आप किसी को विलेन बना के किसी को हीरो बनाओ तो मुझे समस्या है. आप किसी को हीरो बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रादर मैं सपोर्ट करूंगा. भाई किसी को अगर कोई अच्छी बात किसी की बता रहे हो और आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब लोगों के अंदर वैसा बनने की, अच्छा बनने की इच्छा जागृत होगी, जिसकी वजह से समाज में एक अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन आएगा. ऐसे में अगर मैं उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए चलता हूं जो मेरे कल्चर में भी हैं, जो सामने वाले की विचारधारा में भी हैं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो भी करता हूं, समाज के लिए जो अच्छा है उसको करने की कोशिश करता हूं, सबको समझने की कोशिश करता हूं, तो इससे अगर स्टीरियोटाइप ब्रेक होता है तो ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ नॉर्मल पर्सन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ पर्सन जो सबको लेके चलने की कोशिश करता है, सबके तरह के सोचने, समाज में रहने, सोशल एनिमल की तरह रहने की कोशिश करता है. राइट थिंकिंग पर्सन, करेक्ट. इसको आइडियोलॉजी से कनेक्ट करना है. अब हम मुझे पता चला कि मैं तो भैया मैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मैंने शुरू में बात बोली, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करने वाले, झंडे के सामने सलाम करने वाली एक आदमी जो सबके धर्मों का आदर करने वाला व्यक्ति हो, वो नेशनलिस्ट क्यों बोले जाने लगा भाई उसको सडनली? तो आपने मुझे नेशनलिस्ट बोला जाना शुरू किया, ये तो मैं कॉलेज में आके मुझे पता चला कि यार मैं नेशनलिस्ट हूँ. मुझे लगा था मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, जो मुझे पढ़ाया गया कि भाई टीचर्स के साथ में इज्जत से बात करो, पेरेंट्स के साथ में इज्जत, ये तो मुझे किताबों में पढ़ाया गया ना भाई, कि क्रांतिकारी अच्छे थे, इन्होंने ये किया था, इन्होंने इस लड़ाई में ये किया, इन्होंने इतने लोगों को मार दिया, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है. मुझे सडनली पता चला कि मैं एक हाइपर नेशनलिस्ट हूं, जस्ट फॉर स्टिकिंग टू माई टेक्स्ट बुक्स जो मैं पढ़ के आया हूं, मेरे कॉलेज में जो एजुकेशन मिली उसके लिए. तो मैं तो राइट था ही नहीं, आज भी राइट मैं नहीं हूं. मैं इसलिए अपने आप को इंडिक बोलता हूं, मैं राइट हूं नहीं, क्योंकि राइट एक बहुत डेरोगेटरी वो तो एक तरह से राइट और लेफ्ट वेस्टर्न सेंस में एग्जैक्टली वो लेंस से हमको जबरन उस लेंस से देखा जाने लगा और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया. हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन जो लेफ्ट वाले जो बोलते हैं लेफ्ट में, वो लेफ्ट में नहीं है. मेरे कहने का मतलब है कि आप जो हो, आप जिस परिवेश से आ रहे हो, जिस कल्चर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिस जाति संप्रदाय धर्म जिसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो, बिना किसी की
किसी को परेशान तंग किए हुए, बिना जबरन अपने कल्चर को लोगों के ऊपर थोपे हुए, आवाज़ के तौर पे फिजिकली जाके दंगे फसाद करके एग्रेसिव होके आप वैसे मत करो। जो भी करना है आपको रिप्रेजेंट करना है, कल्चरल तरीके से करो और अपनी बात को कहो, लोगों को एक्सेप्ट कराओ। बहुत अच्छी बात है अगर इस सब के बीच में हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा सब कुछ आ जाए, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी मूल को जानते हुए अगर आप सबको एक्सेप्ट करते हो, इससे बड़ी बात अच्छी चीज़ क्या है। तो मैं एक वो हिंदुस्तानी हूँ जो सारे कल्चर्स को एक्सेप्ट करता है। मैं उस हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ जिसने सबको एक्सेप्ट किया, चाहे वो पारसी थे, चाहे वो मुस्लिम्स थे, चाहे वो पुर्तगाली थे, किसी भी तरह की कॉलोनी आई, शक खून आए, सबको हमने एक्सेप्ट किया। इसमें देश के अंदर जितने तरह के जिसको हम बोलते हैं, हम जिसको हिंदू कल्चर बोलते हैं, उसमें बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे लोग मानने वाले एक साथ रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। इसका मतलब है कि किसी समय एक शैव वो चला होगा, एक वैष्णवों का एक वो चला होगा, इसका मतलब वैष्णवों ने शैव को अटैक करना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं ना। या देवी के उपासकों ने जो है ना वो जो है ट्राइबल्स को मारना शुरू, ऐसा तो नहीं हुआ ना इस देश के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमने एक ऐसा कल्चर बनाया है जिसमें धर्म कभी भी झगड़े का कारण नहीं हो सकता। पर जब ऐसे लोग आ जाएं जो अचानक से बोले कि नहीं आपका धर्म नहीं है, हमारा ही धर्म सिर्फ धर्म है, तब समस्या खड़ी हो जाती है। इस तरह से लोग जो है ना, इस तरह की मेंटालिटी के साथ में आपके पास घुसते हैं, वो आपका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं कि आप पैगन हो, आप इन्फिडेल हो, आप ये हो वो हो, और आपके देवी देवता तो अरे वो तो बंदर और हाथी और ये सब आपके देवी देवता हैं। आपके देवता इंसान होने चाहिए भाई, इंसान। और फिर कोई बोले कि नहीं अच्छा मेरे देवता इंसान है, तो कहीं भी इंसान भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी आइडल है। तो आई मीन कोई अंत नहीं है इसका, इस बहस का और इस पागलपन का कोई अंत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको एक स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहिए और सबको एक आम इंसान के जैसे रहना चाहिए, जिसके अंदर भावनाएं हैं, जिसके अंदर अपने आप को व्यक्त करने के लिए कलाओं के दूसरी तरह की कलाएं। कलाओं से ही लोग सबसे आसानी से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये तो एक हम समझ गए। और इसी का गलत फ़ायदा उठाने के लिए एक पूरी की पूरी एक जमात खड़ी है जिसको हम सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट बोलते हैं, कि वो आर्ट को ही सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं और उसको बिल्कुल इतना नीरस कर दिया कि वो अब कंज्यूम करने लायक नहीं है। आप कोई थिएटर जा नहीं रहे, आप देख ही रहे हो जी। So yeah, with that we come to the end of today's discussion, Vishal. It was a great conversation chatting with you. जी, मुझे बहुत बहुत मज़ा आया एंड आई रियली लव टॉकिंग टू यू। मतलब इस बार मैंने तुमको बोलने नहीं दिया, मैं ही बोल रहा था। अपने घर बुलाया, गैस को नहीं बोलने दिया। अतिथि देवो भव। मुझे पता नहीं, अभी भी हम शो के एंड में पहुंच चुके हैं, हमें अभी भी पता नहीं कि गेस्ट कौन है और होस्ट कौन। चलिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये इंडिक एक्सप्लोरर का चैनल पे हम सभी हैं। ये घर मेरा है, हमने एक कैमरा सेटअप लगाया और यहाँ पे हमने इसको सेटअप किया। सो मेरे घर में ये गेस्ट हैं, लेकिन इस शो पे मैं गेस्ट हूँ। ये होस्ट तो हम दोनों होस्ट हैं और दोनों गेस्ट भी हैं, और यही स्टीरियोटाइप तोड़ने का एक सबसे अच्छा तरीका है। So with that we come to the end of today's show, guys. I hope you like this show. Please हमें like, share और subscribe करें और इसी तरह support करते रहें। और आप इंडिक लाइब्रेरी को भी ढूंढें ऑन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ जब भी आपको मिले प्लीज़ उसको फॉलो कर लें। हम बहुत सारी अच्छी जानकारी, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, आप तक लेकर आएंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को, अपने इतिहास को समय समय पर डिग करें, और बहुत सारे और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन सबको इंडिक एक्सप्लोरर जैसे इन सबको भी हम अपने साथ में प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। इन कल के दिन हमारे इंडिक लाइब्रेरी के शोज़ में भी ये दिखाई देंगे और हम चाहेंगे कि ये कुछ शोज़ होस्ट भी करें। तो प्लीज़ उसको फॉलो करें और इंडिक एक्सप्लोरर को ज़रूर से फॉलो करें। So yes guys, say no to WhatsApp University and say yes to the Indic Explorer and the Indic Library. Until next time, always remember, Dharma rocks. See you around.